Hello everyone, welcome to Jansh Academy. In this video, we are going to talk about Java technology. Before going forward, let me introduce myself. I have 7 years of working experience in IT industry. Currently, I am associated as a technology lead in Java. I am also an Oracle certified developer of Java. And through this platform, I would like to share my knowledge of Java with you guys. So what is Java? Java is a programming language which is based on C++. It is a very popular language and is very widely used in enterprise level applications. तो जब भी हम एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस को बनाने के बारे में सोचते हैं, Java is the very first name that strikes our mind. So let's try to figure this out that why is that so? Why Java is so popular and so widely used, especially when it comes to enterprise level applications concepts. Let's figure out. So the very first and very impactful behavior of Java is the object-oriented nature. Object-oriented hona is a software design pattern which is very strong and has been very dominant from decades in this particular industry. Object-oriented होने से हमें होता क्या है? It gives us a very natural way to think about the components in the system, जो कि हमें बहुत हेल्प करता है conceptualize करने के लिए एक सॉफ्टवेयर को, बिकॉज हम उसको इंटर रिलेट कर सकते हैं हमारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ. और जावा के अंदर वी टॉक अबाउट ओनली ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स के अराउंड पूरी जावा हमारी रिवॉल्व होती है. द वेरी सेकेंड थिंग इज इनकैप्सुलेशन. सो इनकैप्सुलेशन आप एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ही एक एस्पेक्ट है. सो वी कैन थिंक अबाउट इनकैप्सुलेशन एज अ कैप्सूल. कैप्सूल इन द सेंस कि हम लोगों ने डेटा और डेटा को एक्सेस करने वाले सारे मेथड्स को एक कैप्सूल में लॉक कर दिया, और वो जो कैप्सूल है वी नेम दैट कैप्सूल एज अ क्लास, और उस क्लास के इंस्टेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट. अब बिकॉज हमारा डेटा और उसको एक्सेस करने वाले सारे मेथड्स एक कैप्सूल के अंदर लॉक है, तो ये हमें डेटा हाइडिंग को अलाउ करता है. कोई एक सेकेंड या थर्ड कंपोनेंट डायरेक्टली हमारे डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता until unless हम उसको specific access rights ना देते through the method that we have written inside that capsule or inside that class. So encapsulation is a very strong behavior of Java, and which is very much required when it comes to enterprise level applications. We will see in the upcoming videos the real practical implementation of each and every concept that we are talking right now. The third thing is memory management. अगर हमें C++ का कुछ याद है तो C++ के अंदर हमें पॉइंटर्स क्रिएट करने पड़ते हैं. अगर नहीं भी पता सो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. होता क्या है कि जब भी हम एक ऑब्जेक्ट या फिर एक वेरिएबल को यूज़ करते हैं तो हमें पहले उसको एक मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है, और जब हमारा काम ख़त्म हो जाता है तो फिर हमें वो मेमोरी डी एलोकेट करनी पड़ती है, विच इज़ एन एक्सेसिव वर्कलोड दैट यू कैन से दैट कम्स टू अ डेवलपर वाइल डूइंग थिंग्स इन द इम्प्लीमेंटेशन कोड. और इस वजह से बहुत हमारे वेरी कॉमन बग्स आ जाते हैं लाइक मेमोरी लीक्स, एंड विच आर वेरी वेरी क्रिटिकल टू रिजॉल्व. वेयरएज जावा हमें प्रोवाइड करता है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ गार्बेज कलेक्टर जो हमें मेमोरी अपने आप ही एम्प्टी करके देता रहता है, सो दैट हमारा स्टैक कभी भी ओवरफ्लो नहीं होता. So we are not actually concerned about creating the memory or allocating the memory of the object that we are writing in the code, and we are even not concerned about freeing the memory in the if a variable is not used anymore inside my code. Java does it automatically, और आज तक हमें कोई भी एरर नहीं आया गार्बेज कलेक्टर की तरफ से. So it is a very reliable and very smooth approach which provides us in the memory management concept of Java. Then the next thing is huge library set. Because जावा की कम्युनिटी इतनी वाइड है, सो देर आर इनॉमरस लाइब्रेरीज जो कि प्री रिटन है और वेल टेस्टेड हमारे इंटरनेट पे अवेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल, आप एक जावा एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं जो कि एक मेल सेंड करेगी किसी एक यूज़र को किसी बटन क्लिक पर. अब मेल सेंड करने का हिडन प्रोसेस बहुत ही बड़ा होता है. So you have to first connect to the SMTP server, then you have to authenticate, then you have to authorize yourself. उसके बाद ही आप एक ईमेल शूट कर सकते हैं. Whereas अगर आप जावा के अंदर उसकी बात करेंगे, even in many other technologies as well, so there are pre-written libraries that you can directly include into your Java code, which is as simple as including a jar file inside the code. We will let you know how to do it in the upcoming videos, but
लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फॉर नाउ। तो हम उन लाइब्रेरीज को अपने जावा एप्लीकेशंस के अंदर इंक्लूड कर देते हैं और उसके बाद वी नीड नॉट टू वरी अबाउट द बैक एंड प्रोसेस, वी जस्ट हैव टू राइट द abstract methods code that is available through the library to us. And the libraries are very well documented, so it is very easy for the developer to learn and to integrate them in their own application code. The next thing is Java is secure by design. बाय डिज़ाइन आई मीन जो ओरेकल डेवलपर्स हैं जब उन्होंने जावा को लिखा था, सो दे राइट इट वेरी सिक्योर बाय डिज़ाइन। दे थॉट द थॉट प्रोसेस वाज वेरी सिक्योर। द रीज़न वी आर सेइंग इट, जब हम एक जावा कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो एक जावा वर्चुअल मशीन के अंदर रन होता है। जावा वर्चुअल मशीन को हम समझ सकते हैं लाइक अ सैंडबॉक्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर सैंड पड़ी हुई है और आपने वहाँ पर अपना एक बॉक्स रख दिया और उसके अंदर आपने अपनी कुछ सैंड उठा के रख दी। अब आपका जो जावा कोड है वो उसी बॉक्स के अंदर ही रन होने वाला है, उसको कुछ मतलब नहीं है जो सैंड उसके बाहर पड़ी है। एंड दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट व्हेन इट कम्स टू आवर सिस्टम्स। तो जावा जो है वो एक जावा वर्चुअल मशीन के अंदर रन होती है एंड इवन इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग it has nothing to do with the other software that are present on the same system. So which is very secure by design and it is very preferred approach. The next thing is, and very popular concept when it comes to students, is the Java provides a bytecode concepts, which means write once and run everywhere. सो राइट वंस एंड रन एवरीवेयर का मतलब क्या है? ये एक्चुअली हमें क्रॉस प्लेटफॉर्म रनिंग एबिलिटी देने के लिए बताया जाता है कि हम हमारे सिस्टम के ऊपर, फॉर एग्जांपल आई एम रनिंग अ उबुंटू सिस्टम, उसके अंदर मैंने एक कोड लिखा और मैं उसको कंपाइल करके उसका बाइट कोड निकाल कर किसी और सिस्टम पे, बी इट अ विंडोज सिस्टम, उसके ऊपर जाके अगर वहाँ पर मेरा रन टाइम एनवायरनमेंट पड़ा है वहाँ पर हम डायरेक्टली उस कोड को रन कर सकते हैं। बट यूजुअली डू यू एवर थिंक कि आपने एक एप्लीकेशन आपकी उबुंटू और सेम एप्लीकेशन हमारी विंडोज में चलती है? नहीं चलती। वेयरएज जावा के अंदर ये रनिंग एबिलिटी होती है, सो इट इज ऑल्सो अ वेरी बेनिफिशियल पॉइंट फॉर जावा। And then the second thing is Java can be run because it is so versatile. So Java can be run on various devices, be it from very tiny IoT devices to my phones, Android phones, to the laptops and computers, and even to very large scale servers. And I have implemented Java in all of these technologies. आई वुड रियली लाइक कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको हम इतना टीच कर सकें कि वो इन सब टेक्नोलॉजीज के ऊपर जावा को इम्प्लीमेंट करने की कैपेबिलिटी रखें। लेट्स गो फॉरवर्ड। तो जावा इज अ स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज? लैंग्वेजेस हमारी दो तरह की होती है, आइदर अ लैंग्वेज इज लूजली टाइप्ड और आइदर अ लैंग्वेज इज स्ट्रांगली टाइप्ड। सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाट इज लूजली टाइप्ड लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट अस सपोज हमने उस वेरिएबल को एक नंबर असाइन कर दिया। हमने एक वेरिएबल लिया और उसको एक नंबर असाइन कर दिया। लेट अस थिंक कि हमने वेरिएबल का नाम रखा था नंबर और उसको हमने असाइन कर दिया 7। सो वी हैव इन आवर मेमोरी वी हैव नंबर जिसको हमने 7 वैल्यू असाइन कर दी है। सो इन माई फ्यूचर प्रोग्राम हम प्रोग्राम का कोड लिखते जा रहे हैं और आफ्टर सम लाइन ऑफ कोड हमने उस नंबर वेरिएबल के अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू लिख दी। फॉर एग्जाम्पल उस नंबर वेरिएबल में हमने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। सो दिस इज अ लूजली टाइप लैंग्वेज कि ये जो नंबर है इसकी जो टाइप है वो प्री डिफाइंड नहीं है, उसके अंदर चाहे हम नंबर लिख सकते हैं या फिर हम उसके अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर सकते हैं। वेयरएज अगर हम स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो जो हमने टाइप डिफाइन किया है उसके अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं डाल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक फॉरवर्ड द सेम एग्जाम्पल। हमने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम नंबर था, अगर उसके अंदर वैल्यू 7 हमने असाइन कर दी है तो इन द प्रोग्राम आफ्टर सम इवन लाइन्स ऑफ कोड हम उस नंबर वेरिएबल के अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू लाइक हेलो वर्ल्ड असाइन नहीं कर सकते। इट हैज़ टू बी अ नंबर ओनली। हम उसमें 10 असाइन कर सकते हैं, 1 असाइन कर सकते हैं, -12 और एनी इंटीजर नंबर हम उसमें असाइन कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट असाइन अ स्ट्रिंग टाइप वैल्यू। इससे होता क्या है? लूजली टाइप लैंग्वेजेस का कोड लिखना बहुत आसान है बिकॉज यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर इंटरचेंजेबल और जैसा हमने उसको वैल्यू असाइन किया वो अपनी टाइप वैसे ही ले लेते हैं। वेयर एज जब हम एक लार्ज और
बहुत ही यू कैन से लार्ज स्केल एप्लीकेशंस के अंदर पहुंच जाते हैं। सो ये कोड मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इन द एंड वी गेट कंफ्यूज एट व्हाट इज द एक्चुअल डेटा टाइप और ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। और ऐसा भी होता है कि हमारी एक्सपेक्टेड डेटा टाइप कुछ और होती है, लेकिन उस टाइम पे उस वेरिएबल की ड्यू टू सम एरर और ड्यू टू सम मिस हैंडल्ड कोड उसकी वैल्यू कुछ और टाइप की हो जाती है। वेयरएज जावा हमें पहले ही रिस्ट्रिक्ट कर देती है इससे, जिससे होता क्या है कि कंपाइलर जो है पोटेंशियल एरर पहले ही देख लेगा कोड के अंदर, जो इन दी एंड हमारा कोड बहुत रिलायबल, टेस्टेबल और यू कैन से इट इज अ प्रोडक्शन क्वालिटी कोड जो हमारे पास बन के आता है। द वेरी स्ट्रॉन्ग नेक्स्ट फीचर इज द मल्टी थ्रेडेड अप्रोच ऑफ जावा। सो मल्टी थ्रेड का क्या मतलब है? अगर हम एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट हमारे सिंगल थ्रेड पर रन होता है। अब लेट अस थिंक कि हमारा वो जो प्रोग्राम है उसका काम है बहुत लार्ज डेटा सेट्स के अंदर से वैल्यूज को निकाल के उस पर कैलकुलेट करना। अब अगर वो हमारा सिंगल थ्रेड पे चलता जाएगा, सो इट मे बी पॉसिबल दैट डिपेंडेंट अपॉन द लार्ज डेटा सेट और डिपेंडेंट अपॉन द कैलकुलेशन कम्प्लेक्सिटी, वो हमारा जो कोड है वो आवर्स तक हमारा चलता रहे, विच वॉट इन द एंड वट गिव्स अस कि हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। वेयरएज अगर मैं सेम टाइम पर देखूं, हमने अगर एक सीपीयू लगाया हुआ है, सीपीयू का सिर्फ एक ही हमारा थ्रेड यूज हो रहा है, यानी कि उसकी एक ही कोर इस टाइम पे यूज हो रही है, वेयरएज बाकी सारी कोर्स उस टाइम पे एम्प्टी पड़ी है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी वर्क टू डू विद देम। लेकिन हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, जिससे कि हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो हम क्या करते हैं, यूजिंग जावा वी कैन एक्चुअली डिवाइड आवर वर्क इनटू मल्टीपल थ्रेड्स, जो कि एक्चुअली हमारे डिफरेंट और आइडियल सेटिंग कोर्स कैपेबिलिटी ऑफ दैट सीपीयू को यूटिलाइज कर लेगी। अब जो हमारा काम सिंगल थ्रेड के ऊपर डिपेंडेंट था, सिंगल सीपीयू कोर के ऊपर पूरा लोड था, उसको हमने बाइफरकेट कर दिया डिफरेंट कोर्स के अंदर, जो कि अब हमारा काम मल्टीपल थ्रेड्स के अंदर पैरेलली चलेगा। तो ऑफ कोर्स हमारी जो है एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम हो जाएगा, जिससे कि हमारी कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस हैज बीन ऑल द डिटेल्स पॉइंट, जो कि एक्चुअली एक जावा को बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज बनाता है और इतना पॉपुलर करता है एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट के लिए। So let's catch up in detailed discussion pointers for each and everything that we have discussed in this chapter, और हम हर एक की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को भी आगे वीडियोस के अंदर आपको दिखाएंगे। So please like and subscribe our channel. Thank you so much.